Welcome to the second session of the Called and Empower seminar. बुलाहट और इख्तियार के दूसरे सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ Here in Murray, मरी में with the free and healed participants. फ्री और हील्ड के पार्टिसिपेंट्स के साथ तमाम। So this morning we talked about the last words of Jesus, आज सुबह हमने यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज के बारे में सीखा the promise that we will do the same works and greater works. और उस वादे के बारे में जाना कि हम यीशु जैसे और उससे भी बड़े काम करेंगे। But we learned that it's not the we, it's the one who believes. और हमने ये सीखा कि वो हम नहीं बल्कि वो है जो ईमान रखता है। So we don't wait for other people तो हमें दूसरों का इंतजार नहीं to करना, decide if we want to be that one person who believes, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वो एक बंदा बने जो कि ईमान रखता है, the one who loves Jesus, जो कि यीशु से प्यार करता है, who obeys his commands, जो उसके हुक्मों को पर चलता है, so that the Father can send us the Holy Spirit. ताकि खुदा बाप उसके लिए पाक रूह को भेजे। We talked a little bit about the works of Jesus. हमने थोड़ा बहुत यीशु के कामों के बारे में भी जिक्र किया, They're not social works जो कि फलाही काम नहीं थे in the first instance. पहली नज़र में। Now let's look at how Jesus described his mission. अब हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह अपनी खिदमत को किस तौर से बयान करते हैं, His first words. उसके पहले अल्फाज। So if we read the book of Luke, अगर हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं, we read about Jesus, we read about the Christmas story, हम जो है यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जानते हैं, we read about how Jesus was tempted. और हम ये सीखते हैं कि किस तरह वो आजमाए गए। But the first words that Jesus spoke publicly लेकिन वो अल्फाज जो यीशु ने पब्लिकली कहे थे, अवाम में कहे थे, लोगों को कहे थे, that Luke records जो लूका ने रिकॉर्ड किया, are found in Luke 4:18. वो हमें लूका की अंजील 4 बाब 18वीं आयत में मिलते हैं। And there Jesus said, और वहाँ पे यीशु ने कहा, "The Spirit of the Lord is upon me, खुदा का रूह मुझ पर है। आप इस तरह से पढ़ें, because he has anointed me to preach good news to the poor, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom to the captives, recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor." बस वो बोलते हैं। Okay. खुदावन का रूह मुझ पर है, इससे कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी दूं, खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। Okay. So there, as our brother said, there's 6 points there. यहाँ पे जैसे कि भाई ने कहा कि 6 नुक्ते हैं, And the first one is to preach good news to the poor. और पहली जो है वो खुशखबरी सुनाना है। And the church has done a pretty good job of this. सॉरी, The church generally has done a good job of helping the poor. कलीसिया जो है वो इस बारे में बहुत अहम किरदार अदा करती है गरीबों की मदद करने में। Yeah. And if you're poor, it's not good news to stay poor. अगर आप गरीब हैं तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप हमेशा गरीब रहें, It's good news if you can become rich. और ये अच्छी बात यह है कि आप रिच हों। So we believe in prosperity. हम जो है बहाली पर ईमान रखते हैं, Jesus came to bring good news to the poor. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने आया हूँ। Okay. That's the first point. The second one, though, is to bind up the brokenhearted. शिकस्ता दिलों को जोड़ दें। Then we have recovery of sight to the blind. और फिर अंधों को आंखें देने, And then we have proclaim freedom for the captives and setting free the oppressed. और गुलामी से लोगों को आजाद, जकड़े हुओं को आजाद करने। So we have कुचले हुओं को। the healing the broken or binding up the brokenhearted. That's about inner healing. और जो शिकस्ता दिलों की बात है वो इनर हीलिंग यानी कि अंदरूनी शिफा की बात हो रही है। And then there's 2 types of deliverance. और 2 तरह की रिहाई है। The proclaiming freedom एक जो है वो हम ऐसे आज़ादी के बारे में दावा करें, and the setting free. और फिर आज़ाद करें, And then finally we have deliverance from debts. और फिर हम जो है उन कर्जों से आज़ाद हो जाएं। That's the year of the Lord's favor. और ये खुदा के उस साल मकबूल की मनादी है। So because in Israel they had a system where every 50 years everyone's debts get forgiven. इसराइल में ये ट्रेंड है कि 50 इयर्स, Every 50 years, yeah. हाँ, 50 साल के बाद वो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। And if you had lost your land comes back to you. अगर आप अपनी ज़मीन खो चुके हैं तो वो आपको दोबारा मिलेगी। And even if your father lost his land because he got into debts, अगर आपके आबा अजदाद में से किसी ने अपना ज़मीन को खोया तो वो भी दोबारा हासिल करेंगे। and now you're working in a brick kiln and you're a slave, और अभी जो है आप काम करें और आप वो गुलामी की ज़िंदगी में थे,
when the 50 years comes, when the year of the Lord's favor comes, जब खुदा के फेवर का साल आता है, साल नौ आता है, you get released from the brick kiln. आप जो है आप उन कर्जों से, उन चीज़ों से आज़ाद होना शुरू हो जाते All हैं। your debts are cancelled, आपके तमाम तर कर्जे जो है वो खत्म हो and जाते you even हैं get your family land back. और आप अपने उस खानदान को दोबारा से हासिल कर लेते So that is a picture हैं। तो ये वो तस्वीर है of deliverance from generational curses, जो नस्ल दर नस्ल जो आप पे लानते हो चुकी हैं, उनसे आज़ाद होने and के a लिए full restoration of what you've lost. और पूरी तरह से बहाली के लिए। So these are the works of Jesus, तो ये जो थे ये यीशु के काम थे to help people out of poverty. कि वो लोगों को उस गुर्बत से निकाले। Yes, that is important. ये भी ज़रूरी है। Emotional healing, जज्बाती तौर पे शिफा याब होना, deliverance from any kind of spiritual oppression, हर तरह की रूहानी तरह से रिहाई पाना and this release from debts and a new type of freedom. और हर तरह के कर्जों से रिहाई पाकर नई जिंदगी में दाखिल होना। So these were the first words of Jesus. ये यीशु के पहले अल्फाज थे। It's the vision statement for his ministry. ये उसकी उस खिदमत की रोया थी And it was going to be our vision statement. और ये हमारी रोया भी हो सकती है। Okay? That's what our life should be about. और ये हमारी इस जिंदगी हासिल करने का मकसद भी यही है। And a big part of that, और इसका जो बड़ा हिस्सा है 2 out of 6, 2 out of 6, 2 आउट मतलब 6 में से 2 who can do maths? जो कि मैथ्स कर सकते हैं। How many is 2 out of 6 in percent? यहाँ पे कौन से ऐसे 2 हैं जो मैथ्स कर सकते हैं? Is 1/3. 1/3 is roughly 33%. 1/3 जो है 33% हो गया। So 1/3 of our work should be dedicated to delivering people from demons. हमारी खिदमत का जो 30% हिस्सा है वो इस चीज़ के लिए हमें डेडिकेट करना है कि हम लोगों की खिदमत करें। It's just a bit more than 10% is the social work. 10% जो है हमें फलाही कामों को देना है। Yeah. 10% is the inner healing. 10% जो है वो हमारी अंदरूनी शिफा है। Okay. You see, Jesus puts this big emphasis on deliverance. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ज़्यादा जोर जो है वो डिलीवरेंस पे डाला, रिहाई पे डाला। But the church gives very little attention to deliverance. लेकिन हमारी कलीसियाएं जो हैं, जो चर्चेस हैं, वो बहुत कम तवज्जो इसको देते हैं। Okay. I don't know how it is in Pakistan. मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या है, क्या सिचुएशन है। But once you have seen the power of deliverance, लेकिन जब अगर आप रिहाई की उस रूह को देख लें, to change a person's life, कैसे वो दूसरों की जिंदगी को बदलती है, and when you see how important it was to Jesus, और जब आप ये जानते हैं कि वो कितना यीशु मसीह नासरी के लिए ज़रूरी थी, yeah, then you will want to learn more about it, तो आप इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहेंगे and you will want God to use you in that ministry. और आप उसको अपनी खिदमत में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। The ministry of deliverance brings a lot of rejection. जो रिहाई की जो खिदमत है उसमें आपको बहुत से जो है इनकार का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शंस को देखना पड़ता है। But Jesus had rejection for that ministry too. लेकिन यीशु नासरी ने भी बहुत से ऐसे मुखालिफत झेली इस मिनिस्ट्री में। We're going to do some sessions specifically on that topic. हम इस मजमून के बारे में एक स्पेसिफिक सेशन लेंगे। So for now, let's just finish up with the words of Christ. अभी के लिए हम यीशु मसीह के उन अल्फाज पे इख्तिताम करते हैं। I want to go back to his final words one more time. मैं उनके उस आखिरी अल्फाज के बारे में दोबारा रिपीट करूंगा। There's some final words of Jesus in Mark after the crucifixion, after he's been spending time with the disciples again, just before ascension. हाँ, ये वो अल्फाज थे जो उनकी मसलूबियत के बाद जब वो आसमान पर उठाए जाने से पहले के जो अल्फाज थे, अब मैं उन पर आता हूँ। Mark 16, 15 to 16. मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब 15वीं से 16वीं आयत। मरकज़ की इंजील, आप ये हवाला कहते हैं वो बोला करें ना। बोले मरकज़ की इंजील। Marcus की इंजील 15 बाब 15 बाब 16 बाब 16 बाब 16 बाब रिपीट द रेफरेंस प्लीज। Mark 16, 15 to 16. 16वां बाब 15वीं से 16वीं आयत। ठीक है। I'll never learn this language. It's so hard. Okay, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. जी पढ़ें कोई। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा।
Okay. So we like to go out and we like to preach तो हमें मुनादी करनी है and we like to baptize. और हमें बपतिस्मा देना है Okay. And we like to condemn as well. और हम उन चीज़ों को लोगों को उन कामों से रोकना भी चाहते हैं। Yeah? Let's be honest. क्या आप चाहते हैं ऐसा? We Be love honest. we like to talk. हम बात करना चाहते We हैं। feel great when we're preaching. सॉरी We feel great when we're हाँ, preaching. जब हम मनादी करते हैं, प्रीच करते हैं, तो हम बहुत अच्छा और enthusiastic महसूस We करते get हैं। enthusiastic if people want to get हम baptized. बहुत पुरजोश महसूस करते हैं, खुश होते हैं। And when we don't believe, we love to condemn them. और हम इस बात को लेते हैं कि हम उनको किस तरह से रोक सकें उन बुरे कामों से। Okay. Oh, he's a bad person. He didn't believe. हाँ, कि वो एक बुरा आदमी है, ये कैसे ईमान लाएगा? Because we can do all of those things in our own strength. क्योंकि हम वो सारी चीजें अपनी ताकत लगाकर करते हैं। Some people can talk very well. बास लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते So they हैं। can preach very well वो बहुत अच्छा मनादी कर सकते हैं without the Holy Spirit. रूहुल कुद्स के बगैर, पाक रूह के बगैर। Okay. But there's something Jesus said that we can't do without the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप पाक रूह के बगैर नहीं कर Let's सकते। read on to the next verses. चलें अब हम अगली की आयतों पे गौर करते हैं। And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. और वो कुछ निशानों का जिक्र करते हैं कि मेरे नाम से वो बदरूहें They निकालेंगे। will speak in new tongues. वो नई नई गैर जुबानें बोलेंगे। They will pick up serpents in their hands. वो सांपों को अपने हाथों से उठा लेंगे। If they drink any deadly poison, it will not hurt them. अगर वो उनको कोई जरर पहुंचाएंगे, काटेंगे तो उनको जरर नहीं पहुंचेगा। And they will lay hands on the sick और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे and they will recover. और वो जो हैं ठीक हो जाएंगे। Okay, those are things we can't do without the power of the Holy Spirit. ये वो काम है जो हम पाक रूह की कुदरत और कुव्वत के बगैर नहीं कर सकते। They will cast out demons उनमें से बदरूह निकालना, and speak in new tongues, गैर जुबान बोलना, pick up serpents, सांपों को उठाना, drink deadly poison, जहर खाना and lay hands on the sick and see them recover. और बीमारों पर हाथ रखना और उनको रिकवर होता देखना। That's so much more fun than condemning people. हाँ, ये सबसे बढ़कर है जो हम लोगों को कंडेम करते हैं, उनको मना करते हैं। And can we shut the door because of cold? This draft coming in a bit. We have seen God use us for all of those purposes in the Free and Heal ministry. हमने देखा है कि खुदा ने हमें इन सब मकासद के लिए फ्री एंड हील में इस्तेमाल किया। In Zambia and Zimbabwe, we cast out many demons. ज़िम्बिया और जिम्बाब्वे में हमने बहुत सी बदरूहों को निकाला। If you saw the Called and Empowered documentary last year, the अगर- Peshawar Crusade, अगर आपने पेशावर क्रूसेड की लास्ट ईयर की डॉक्यूमेंट्री देखी हो, there was Mariam, and before she even gets to the front, she was already manifesting a demon. वहाँ पे एक लड़की थी मरियम, पेशावर क्रूसेड में। अभी वो जैसे ही आगे आई तो वो बदरू उस पर जाहिर हो गई And it was a strong spirit, और वो बहुत कुव्वत रखने वाली बदरू so we थी cast it out. जो कि हमने निकाली। We had about 6 of those in my last 2 weeks. पिछले हफ्ता में तकरीबन 6 मैं ऐसे केसेस डील कर Africa, चुका हूँ yeah. अफ्रीका में, ज़िम्बिया में। Beautiful young ladies. बहुत खूबसूरत यंग औरतें। They didn't tell us what they had for open doors in their life, तो वो हमें नहीं बताती थी कि उनकी ज़िंदगी में क्या है, but they were manifesting very powerful demons. लेकिन उनके जिस्म से वो उन बदरूहों का इजहार हुआ, मुजाहिरा हुआ। So we cast them out. तो हमने उनको निकाला। Because Jesus said we'll do that if we believe. यीशु ने कहा कि अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम ये करोगे। Okay, but we're going to give you some help on some practical things how you can become more confident in doing that. और मैं आपको कुछ अमली इकदाम बताऊंगा कि आप किस तरह से इन कामों को कर सकते हैं। They will speak in new tongues. वो जो है गैर जुबान बोलेंगे, नई जुबानें बोलेंगे। And there was a young lady by the name of Mildred, और वहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम मिल्ड्रेड था and she manifested a demon every day for 3 days. और वो पिछले 3 दिनों से उस डीमन को, उस बदरू को अपनी जिंदगी में देख रही थी। Maybe there were different demons हो सकता है कि और तरह की भी बदरूहें because we हों, cast them out every time, क्योंकि हम उनको बार बार निकालते हैं। and she seemed to be better. और वो कुछ बेहतर नजर आ रही थी And every day she was a little better. और हर दिन उसकी हालत कुछ बेहतर होती जा But रही on the थी। Sunday, लेकिन इतवार के दिन at the end of the last meeting, और मीटिंग के बिल्कुल आखिर में she got set free again, and then she spoke in tongues for 15 minutes. तो वो बिल्कुल रिहा हुई और उसने 15 मिनट गैर जुबान में दुआ करना शुरू No one could stop her. की और उसको कोई रोक नहीं सक रहा था Yeah. So they will speak in other tongues. और वो गैर जुबान बोलने लगी They will pick up serpents.
बिच्छुओं को उठाएंगे। That means, it doesn't mean we need to go and look for a snake to hold. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाएं और आप बाहर जाके सांपों को हाथों पर उठा लें। It means we don't need to be afraid of any animal. इसका मतलब ये है कि हमें किसी जानवर से डरना नहीं है। I had a translator in India. I had a translator in India, मैंने इसको इंडिया में इस तरह से वो ट्रांसलेशन में देखा। and we had this passage, ये पूरा पैराग्राफ था। and she was excited, वो बहुत खुश थी and she went home in the night, और वो रात में उधर गई। and in the night a South Indian viper came and bit her on the foot. वाइपर टाइप ऑफ स्नेक वो आया और उसके पाँव पर उसने काटा। And they lived in the city, not in the country. और वो शहर में रहते थे, गांव की तरफ नहीं रहते थे। She was a lawyer, she had a nice house. उसका घर बहुत अच्छा था, वो वकील थी। So what was the snake doing in her kitchen? तो सोचने की बात यह है कि उसके किचन में वो सांप क्या कर रहा था। But she went in the night to get a glass of water, वो रात में गई अपने किचन में पानी का ग्लास लेने के and the लिए, viper bit her. और जो स्नेक वाइपर था उसने उसके पाँव पर काटा। She switched on the light, she saw it was a viper. जब उसने लाइट ऑन की, देखा कि ये एक सांप है, But she remembered the words of Mark chapter 16, verse 17 and 18. उसको मरकस की इंजील और के ये वर्ड्स याद आए That the snake can't harm her. कि मुझे वो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। So she didn't go to hospital, she came to the conference the next. हाँ, तो वो हॉस्पिटल जाने की बजाय कॉन्फ्रेंस में आ गई And so she gave her testimony. ताकि वो गवाही दे। Praise the Lord. So these are things that Jesus promises that we will do if we believe. तो ये वो काम है जिनके बारे में यीशु ने जिक्र किया कि अगर हम ईमान रखेंगे तो ये काम कर सकेंगे। So why don't we see more of it? तो हम इसे बढ़ के क्यों नहीं देख रहे? Well, the reason is, I say some of us don't love, some of us don't obey. हाँ, उसकी वजह यह है कि हम में से कोई प्यार नहीं करता और कोई हुक्मों को नहीं मानता, Some of us don't believe. और हम में से कुछ ईमान ही नहीं रखते। We read it, we say we believe it, but we don't really believe it. हम उसको पढ़ते तो हैं, मुंह से कहते हैं कि ईमान है, लेकिन ईमान नहीं होता। And mostly it's because we think that we're not a good person. और उसकी वजह यह है कि हम बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं। We think we haven't prayed enough. हम ये सोचते हैं कि शायद हम उतनी दुआ नहीं करते, We think we haven't fasted enough. हम उतने रोज़े रियाजत नहीं करते। We think that we had an argument with our partner, with our wife or our husband, and so now we can't go and pray for anybody. तो हम ये सोचते हैं कि शायद मेरे अपने शोहर या बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैं जाके दूसरे पे दुआ कैसे करूं? So we have this performance mentality. हमारी ये परफॉर्मेंस मेंटालिटी है कि हमारा किरदार कैसा है, I need to work harder for God. कि मुझे खुदा के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है, He can't use me yet. वो मुझे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। Some of us think I don't know the Bible enough, और हम में से बाज़ ये कहेंगे कि मैं तो बाइबल को इतना जानता ही so नहीं, God can't use me. तो खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा? There's a lady in Kenya. केन्या में एक औरत थी, Her name is Lucy. उसका नाम लूसी था। And Lucy never went to school, लूसी कभी स्कूल नहीं गई थी, so she can't really read the Bible. तो वो बाइबल नहीं पढ़ सकती थी, But the Lord speaks to her, लेकिन खुदा उससे बात करता था। and the Lord sends her to people. हाँ, She goes on the prayer mountain, she hears from the Lord, ओके, वो जो है वो खुदा उसको भेजता था कि वो जाए और लोगों से बात करे, and then she goes and she lays hands on the sick, और वो जाती थी और बीमारों पर हाथ रखती थी, and they recover. और वो हील होते थे, रिकवर होते थे। So much so तो अब तक that the priest in the Catholic Church where she was going said, "You're not allowed to pray for people anymore." तो वो कैथलिक चर्च जाती थी और वहाँ के प्रीस्ट ने उससे कहा कि तुम अब और लोगों के लिए दुआ नहीं करोगी। I'm the priest. मैं प्रीस्ट हूँ, I read the Bible. मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I studied. मैंने मुतालिया किया है, I can't have a lady who can't read or write मैं ऐसी औरत को नहीं रख सकता जो कि लिख और पढ़ नहीं सकती, doing what I'm supposed to do. और वो वही काम कर रही है जो मैं करता हूँ। Yeah? So they stopped her in that church. तो उस प्रीस्ट ने उस औरत का उस चर्च में आना मना कर दिया। The doctors in the hospital, जो अस्पताल में जो they डॉक्टर said, "You're not थे, allowed to visit the hospital anymore तो ये कहेंगे कि आपने हॉस्पिटल नहीं आना, because you can't just come in the hospital and heal people." क्योंकि आप इस वहाँ पे नहीं आएंगे ताकि लोग शिफा पाएं। उसका आना बंद कर दिया हॉस्पिटल से। Yeah? We don't need to be educated. हमें उन एटिकेट्स को फॉलो नहीं करना। एजुकेशन, we don't need to educate। Don't say to yourself, "I haven't read enough of the Bible." आप ये ना कहें कि मुझे ज़्यादा बाइबल पढ़नी नहीं आती। Don't let that stop you. इस चीज़ से अपनी खिदमत को ना रोकें, Because it says, "Whoever believes."
क्योंकि लिखा है कि जो ईमान रखता है, these signs will follow those who believe. और ये निशानात उनको मिलेंगे जो ईमान रखते हैं। That's the condition. ये वो शर्त है, ये वो हालत है। So that's the main kind of blockage, is we think we're not good enough. और ये वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते नहीं हैं। We think we're not trained enough. हम ये समझते हैं कि हमारी उतनी तरबियत नहीं हुई। Okay? The other thing is that we're actually hurt. दूसरी जो बात है जो बहुत ज़्यादा हमें हर्ट करती है, Maybe we're like Lucy, and somebody told us, no, you're not allowed to pray for people like that. शायद वो लूसी की तरह ही सिचुएशन हो कि हमें को कहा जाए कि आप दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकते And you felt hurt. और आप हर्ट हो जाएं। Or maybe you were in a meeting and somebody got prayed for and they got healed, but you didn't get healed. हाँ, और आप एक मीटिंग में गए हैं, कोई और शिफा पा रहा है और आपने नहीं शिफा पाई, And so you're disappointed. तो आप मायूस हो जाते हैं। And you say, God doesn't see me. तो आप ये सोचने लगते हैं कि शायद खुदा मुझे देखता ही नहीं है। So we can be disappointed, we can be hurt. हम हर्ट हो सकते हैं, हम मायूस हो सकते हैं, That can be stopping us do the works of Christ. और ये मायूसी जो है हमें खुदा के काम करने से रोकती है। The other thing is दूसरी जो बात है, that maybe we haven't been trained by God yet. दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारी अभी खुदा ने वो तरबियत ही नहीं की। Because as true as it is that God can use anybody, ये बात सच है कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता there's है, always a process of training that God takes us through. लेकिन तरबियत का भी एक अमल होता है। And that's going to be the topic of the next session. और ये जो है हमारे अगले सेशन का टॉपिक होगा मज़मून।